So we discussed many subjects. Usually, these field engineers, university people, they will together help us to bring privilege to introduce. They are presently the guest of the honor. That is the Commissioner SMC, Mr. Atar Saab is with us. And we are highly thankful for him sparing the time and also daring for half an hour before the inauguration of the ceremony. I would love to welcome him to inaugurate rather this formal now this proceedings with his inaugural speech here. Welcome address. Dr. Roop Saab, you come on the stage, please. Well, I think it is a revolutionary step. After COVID restrictions ended, we thought let us give it a start. A very small start, but let us give it a start to work in physical mode. And that we may come out of these restrictions, and inshallah we will try to arrange the glory of this institution comes to all-time high. Regarding this, it must be cleared. Mechanical people are worried that snow must be cleared with the worried my roads will be damaged. So there has to be a mixed combination of the discussions, the presentations and suggestions, and which will be taken definitely care of in future. I must congratulate the Institute of Engineers, the J&K, particularly the Kashmir chapter, for organizing this program. I think these programs should happen very often. I think this is the second time. The first time when I had joined, we had one on drainage and sewage, and this is the second time. Probably this is the second after that. So it helps us all come together, discuss the issues, and maybe cross-learn. That's one of the biggest benefits from such interactions. I just have broad 4 points to make. The first, when we're talking about snow clearance, I'll try to confine myself more towards the Srinagar city, what is our thought process in that, and how we're planning that. The first important point, which in fact Roop Saab also mentioned in his presentation, challengers have also discussed that. We often talk about, say, snow clearance ho gaya, ab road damage nahi hone chahiye. I think it's a responsibility of both who make our roads to ensure that our roads are friendly so that the equipment, whichever is used for snow clearance, they can ply smoothly. Hamare kafi jagah old layers are removed. In fact, the Residency Road, the MA Road, the two roads in the Battamalu side, one is which goes from Battamalu towards Kamalwari, other one is which goes from Battamalu towards the Mominabad side. All these roads, we have designed them more in line with something in Bangalore, they call them tender shore roads, within the IRC norms, within the guidelines. So these roads, we want them to become a benchmark for whatever road redevelopment happens later on in other parts of the city. So what should be the width of the carriageway? How do we ensure this carriageway is uniform? At the same time, what should be the standards and specifications for a proper drain which is on the both sides? What should be the proper standard for a sewerage line? What should be the proper, how high should be our footpath? At many places our footpaths are almost 1.5 or 2 feet high. It's almost impossible to jump on or get off that footpath. How is it best suitable for us, given the all considerations which should help us in having a better and more efficient snow clearance, at the same time should allow us to use this asset throughout the year. So that was one of the reasons. Of course, when it comes to the bigger roads that Mechanical Engineering Department is doing, and other roads which are connecting cities with the different towns, again the machinery, the equipment that required would be different. सर जी ये सेमिनार हो रहा था, आपने मुफस्सल तफसीलात यहाँ पे बताई, थोड़ा सा मुख्तसर बताइए कि क्या प्रोग्राम है आपका, जो आजकल जिस एतबार से लोग काफ़ी जगहों पे शिकायतें करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम वगैरह रोड्स का, तो क्या कहना है आपका? आज जी बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस के ऊपर एक वर्कशॉप था. बेसिकली पोस्ट विंटर वर्कशॉप है ताकि आगे जाके जो एक रोड मैप भी तैयार हो, एक डिस्कशन भी हो कि किस तरीके का मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट हो, किस तरीके की इससे हम इस जो स्नो क्लियरेंस पूरी प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके. इसमें चाहे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या R&B है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के क्या रोल रहते हैं. ब्रॉडली काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है. एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि हम हमारे रोड्स को स्नो क्लियरेंस के फ्रेंडली कैसे बनाएं ताकि स्नो क्लियरेंस आसान हो. इसी तरीके से जब स्नो क्लियरेंस हो, हमारी मशीनरी, हमारी इक्विपमेंट इस तरीके से हो कि रोड्स डैमेज नहीं हो, ये कैसे इंश्योर किया जाए.
तीसरा जो हमारी जो है एक स्टैंडर्ड्स भी सेट हो कि किस तरीके से किस घंटों में किस एफिशिएंसी के साथ जो है स्नो क्लियरेंस का, चाहे वो शहरों में हो चाहे वो गाँव में हो या ओवरऑल जो हमारी जगहों पे हो, उसका इसके बारे में ये पूरा डिस्कशन, पूरा मंथन हो रहा है। इसमें जितने भी बाकी हमारे सीनियर चीफ इंजीनियर्स हैं, जितने बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोग्राम। अभी जो सरमा चल रहा है तो इस एतबार से बहुत मुश्किलात होती है म्यूनसिपलिटी के लिए भी इस वक्त काम करना, लेकिन लोग जो है वो जल्द से जल्द चाहते हैं काम करना, उनके लिए क्या करें? ये अच्छी बात है। इनफैक्ट यही है कि एस्पिरेशन लेवल दिन ब दिन बढ़नी ही चाहिए, कि उम्मीदें भी बढ़नी चाहिए। हमारी भी यही कोशिश है कि मेहनत इतनी तरीके से की जाए कि लोगों की उम्मीदें भी और बढ़े। तो विंटर में जैसे स्नो क्लियरेंस का था, हमने अब की बार काफ़ी वेल एडवांस में उसकी प्रिपरेशन की थी शहर में। तो एक बार स्नो हुआ तो इसको बड़ी एफिशिएंटली उसको क्लियर किया गया। तो आगे के लिए भी और जो हमें चाहे इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो वेल इन एडवांस खरीदी जा रही है, प्रोक्योर की जा रही है, ताकि सिटी स्नो क्लियरेंस के हवाले से सेल्फ सफिशिएंट रहे। ड्रेनेज का आपने जिक्र किया, तो हमारे पास लगभग 85 डिवॉटरिंग स्टेशंस हैं, जिनको उन सभी जो डिवॉटरिंग स्टेशंस की अपग्रेडेशन की जा रही है। उनकी कैपेसिटी बहुत हद तक किसी की जगह 10 गुना भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की जा रही है। बाकी जो हमारे पास सक्कर जटिंग या डिवॉटरिंग जो पंप्स की ज़रूरत होती है, उनको सही तरीके से रखा गया है, उनको सही इस्तेमाल, उनका एक सही प्रोटोकॉल्स SOPs बनाए गए हैं, ताकि एफिशिएंटली उनको हम लोग यूज़ कर पाएँ। इसके साथ साथ बाकी कोशिश भी यही है कि आने वाले जो वर्किंग सीज़न में हमारे चाहे रोड्स का काम करना है या हमारे जो बाकी ड्रेन्स का काम करना है, वो बेहतर तरीके से हो। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग ऑलरेडी हमने एक कंसल्टेंसी भी हायर की है एक श्रीनगर का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए, क्योंकि श्रीनगर शहर में ड्रेनेज एक बहुत ही बड़ा इशू है। इसलिए क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी, हमारी जोग्राफी इस तरीके का है कि नेचुरली पानी जो है वो फ्लो नहीं करता है, ग्रेविटी फ्लो के थ्रू बाहर निकासी नहीं होती है। तो कैसे इसको साइंटिफिकली किया जाए। कई बार ड्रेन कहीं बन जाती है, उसका जो कहीं आउटफॉल नहीं होता है या उसका कहीं जोड़ सही तरीके से नहीं हो, तो एक फेज़ तरीके से बट इन साइंटिफिक और प्लान तरीके से हम लोग ड्रेनेज में जो भी इंटरवेंशन है शहर में करें। इसके लिए हमने एक ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए वी ऑलरेडी हायर्ड एन एजेंसी, वो सर्वे कर रही है। सो एज सुन एज दिस इज़ रेडी, दैट ड्रेनेज मास्टर प्लान इज़ गोइंग टू बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फर्दर जो भी ड्रेनेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है शहर में। थैंक यू। तारुफ, देखिए ये बताइए कि आज जो यहाँ पे आपने वर्कशॉप लाया था, क्या मकसद था इसका और क्या लगता है कि इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? मेरा नाम इंजीनियर फिरदौस साद भट्ट है। मैं ऑनररी सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स जैन के स्टेट सेंटर हूँ। और आज का वर्कशॉप था मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस पे। मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस में एवोल्यूशन, स्कोप, प्रोसेस एंड स्कोप के मतलब एक वर्कशॉप हुआ। और इस वर्कशॉप में हमारे जो चीफ गेस्ट थे जिन्होंने इनॉग्रल किया, वो थे हमारे PWD R&B सेक्रेटरी मिस्टर शैलेंद्र कुमार सर, और हमारी चीफ इंजीनियर सारी टीम, ग्राउंड इंजीनियर्स और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग कॉलेज से जो भी आए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके, वो सारा कंपाइल करके कि हाउ कैन दिस वी कैन मेक मोर इफेक्टिव दिस स्नो क्लियरेंस। आज तक जो आपको सबको पता है कि वादी कश्मीर बड़ी ब्यूटीफुल है, तो स्नो से ज़्यादा ही लगती है, लेकिन जब ये स्नो ज़्यादा हद से गुजर जाए डिज़ास्टर बन जाता है। तो उस डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स में इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, वो कैसे इसको इम्प्रूव करे और आज तक कितनी खदमत करते आए, और पहले ये क्या था, ये कैसे मैकेनाइज्ड में चेंज हुआ, इसी पे आज हमारा एक वर्कशॉप यहाँ पे चल रहा है। तो क्या लगता है आपको क्या फ़ायदा हुआ ये वर्कशॉप बुलाने से? एग्जैक्टली इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर लेवल पे है, वो चाहती है कि हम रिफॉर्म्स करें, हम इसको रिऑर्गेनाइज करें डिपार्टमेंट को। इस रिऑर्गेनाइज और रिफॉर्म्स करने में हमारा ये फीडबैक जो है, जो फील्ड चीफ इंजीनियर्स रिटायर्ड हैं, जो आज के इंजीनियर्स हैं, ग्राउंड है, ग्राउंड पे जो हमारे जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, यानी JE से लेकर चीफ तक जो फील्ड में, और यूनिवर्सिटी में जो भी स्कॉलर्स हैं, उनका एक कंपाइल डाटा हमने यहाँ कर दिया कि इसको हम कैसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, ताकि लोगों की सहूलियत के लिए उनको एक इफेक्टिव स्नो क्लियरेंस मैकेनिज्म सेटअप में हो जाए।